خواتین حضرات کو شامدید ناپا ینگ ڈائریکٹرز تھیٹر فیسٹیول 2015 ہماری آج کی پیشکش ہیئر لائز اے نوبل مین ہدایات حماد سرتاج نے دی ہیں. ہمارا یہ فیسٹیول جو ہے ایک موقع ہے نوجوانوں کو, ہمارے ناپا کے گریجویٹس کو مختلف طرز کے کھیل پیش کرنے کا. اور آج کا جو کھیل ہے اس میں دو مشہور کھیل شیکسپیئر کے میکبیتھ اور اوتھیلو کو لے کر ایک امبیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک نیا کھیل ترتیب دیا ہے حماد سرتاج نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دو کھیلوں میں جو کردار ہیں تیاگو کے اور میکبیتھ کے وہ شاید بہترین نمونہ ہیں امبیشن کے, اور ان سے ملا کے ایک نیا کھیل بنانا ان کو لگا کہ بہت ضروری ہے. تو کیونکہ اس فیسٹیول کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ کوئی نیا کام کیا جائے, تجرباتی کام کیا جائے, تو ہم نے ان کو موقع دیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آپ سے دو گزارشات ہیں, موبائل فون سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں. تصویر نہ ہی کھینچے تو آج بہتر رہے گا کیونکہ آپ لوگ بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں اداکاروں کے. پلے کے دوران تلوار بازی بھی ہوگی. ہم سب اپنی اپنی جان کا خیال رکھیں گے. اداکار اگر قریب آ جائیں تو پلیز بچ جائیے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری پیشکش ہیئر لائز اے نوبل مین. اب ہم تین کب ملے, جب آسمان چمکے, بارش برسے یا بادل گرجے, جب فساد سے جی بھر جائے, جب جنگ میں جیت اور شکست ہو جائے. ہوگا وہ سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے کس جگہ پہ ویرانے میں ملیں گے میکبیتھ سے. کتنا دور ہے؟ یہ کیا مرجھائے ہوئے اور مجھے بالکل جنگلی. اس زمین کی مخلوق نہیں لگتے, کچھ موجود ہے اس میں. زندہ ہو, سن تو سکتے ہیں مجھے. ہر ایک نے اپنی کھردری انگلی اپنے سوکھے ہونٹوں سے لگا رکھی ہے. اتنی عورتیں ہو مگر تمہاری یہ داڑیاں اس کے منکر ہیں. بولو اگر بول سکتے ہو. تا حیات کامیاب رہے میکبیتھ, فرما روائے گلامز. تا حیات کامیاب رہے میکبیتھ, فرما روائے کوڈور. تا حیات کامیاب رہے میکبیتھ, آنے والا بادشاہ. ارے جناب, آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے اتنی بھلی چیز سن کے؟ میرے شریف دوست کا تو آپ نے بڑے شاندار استقبال کیا, ہاں, مگر مجھ سے کچھ نہ بولا. اگر تم واقعی وقت کے ہر لمحے کو سمجھ سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ کون سا لمحہ کس واقعے کو جنم دے گا تو بتاؤ, مجھے بھی بتاؤ, جو نہ بھیک مانگتا ہے اور نہ ڈرتا ہے تمہارے احسان یا نفرت سے. تا حیات کامیاب رہے, تا حیات کامیاب رہے, تا حیات کامیاب رہے. میکبیتھ سے کمتر اور زیادہ بھی ناخوش نہیں لیکن زیادہ خوشحال. تجھ سے بادشاہ ہوں گے گو کہ تو خود نہیں. تا حیات کامیاب رہے میکبیتھ اور بینکو. بینکو اور میکبیتھ تا حیات کامیاب رہے.
سائنل کی موت سے یہ تو واضح ہے کہ میں فرما روائے کلامس ہوں، مگر کوڈور کو کیسے؟ کوڈور کا حاکم ایک کامیاب شخص ابھی زندہ ہے، اور بادشاہ بننا اتنا ہی ناممکن جتنا کہ کوڈور کا حاکم۔ بتاؤ مجھے کہاں سے لا رہے ہو یہ غیب کا علم، اور کیوں اس منوس ویرانے میں ایسے پیشی گوئیوں سے ہمارا استقبال کر رہے ہو؟ بتاؤ، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ بس بس جانے دو، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یاگو کہ تم نے جس سے میری دولت کو چاہے میرے پردے کے بخشیے تک دے دی، تمہیں تو بتانا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مگر تم ہمیں سنتے نہیں۔ میں نے خواب میں بھی اگر ایسا دیکھا ہو تو میرے منہ پہ تھوک دینا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں اس سے نفرت ہے۔ آنےسٹ کو جو میں نہیں کرتا۔ شہر کی 3 بڑی ہستیوں نے خاص طور پر میرے لیے سفارش کی اور کہا کہ وہ مجھے اپنا لیفٹیننٹ مقرر کر لے، اور سچ کہوں کہ میں اپنی قیمت جانتا ہوں، اس سے کم کا تو میں اہل ہی نہیں ہوں، مگر معلوم نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اپنی شان میں اتنا مگن ہے کہ سب کی کہی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا لیفٹیننٹ چن لیا ہے۔ وہ جناب ہے کون؟ فلورنس کے ایک ریاضی دان مائیکل کیسیو، جو جنگ کے مقابلے میں ایک کنواری لڑکی کی طرح ہے، جس نے میدان جنگ میں ایک دستے تک کی بھی رہنمائی نہیں کی، اور انہوں نے اسے چن لیا، اور میں جس کی کارکردگی کو روڈز پہ، سائپرس پہ، میدان جنگ میں جنگی حالت میں دیکھ چکے ہیں، مجھے کنارے کر دیا گیا ایک منشی کے لیے۔ میں اس کا بے مقصد جھنڈا بردار بن کر رہ گیا ہوں۔ تم سے جلاد ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کا کوئی حل نہیں، یہی ملازمت کی لعنت ہے۔ روڈریگو ترقی سفارش اور اثر کی بنا پر ہوتی ہے، نہ کہ عہدے سے کہ پہلے والا گیا اور دوسرے والے نے اس کی جگہ لے لی۔ اب تم مجھے خود ہی بتاؤ گے کہ کسی بھی حال میں مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس حبشی سے محبت کروں؟ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کے ساتھ نہ ہوتا یا میں اس کے ساتھ محض اپنے مفاد کے لیے ہی رہا۔ ہم سب آقا نہیں ہو سکتے، اور ہر آقا کی مکمل تابعداری نہیں کی جا سکتی۔ تم ایسے بہت سے فرما بردار ملیں گے جنہیں اپنی ذلت بھری غلامی کی زندگی میں تسکین ملتی ہے، اور وہ اپنی ساری زندگی مالکوں کے ٹانگے چاٹنے میں گزارتے ہیں۔ لعنت اور سننا اپنی پر۔ لیکن کچھ ایسے فرما بردار بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے دل کی سنتے ہیں۔ ان لوگوں کی روحیں زندہ ہوتی ہیں۔ میں اپنے ایمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ میں اس کا ساتھ صرف اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہوں، میں وہ نہیں جانتا۔ اس حبشی کی بھی کیا قسمت ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا؟ اس کے باپ اسے آواز دے، اسے بتا، اسے بھڑکا۔ اس کی لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس بات کا چرچا شہر بھر میں کر دو، اس کی خوشیوں میں زہر گھول دو۔ اسے بتاؤ کہ اس کی لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، بات خوشیاں پھیکی پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ کہاں غائب ہو گئے؟ فضا میں کھو گئے، حالانکہ گوشت پوس کے دکھائی دیتے تھے، یا ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئے۔ تھوڑی دیر اور رک جاتے تو یہاں موجود بھی تھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یا شاید ہمارے دماغ تو نہیں چل گئے؟ تمہارے بچے بادشاہ بنیں گے، تم بادشاہ ہو گئے؟ فرما روائے کوڈور بھی یہی کہا تھا نا اس نے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یہ لوگ ایک بات، بادشاہ سلامت آپ کی کامیابی کے بارے میں جان کر بہت خوش ہے۔ جو شخص بادشاہ سلامت سے مل رہا ہے آپ کی کامیابی کے ہی گن گا رہا ہے۔ ہمیں بھیجا ہے کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیں اور آپ کو ان کے سامنے پیش کریں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو فرما روائے کوڈور کے خطاب سے بلاؤں۔ کوڈور کی باغ ڈور آپ کو سونپ دی گئی ہے۔ اگر کوڈور کا بادشاہ تو ابھی زندہ ہے؟ بے شک ابھی وہ زندہ ہے، لیکن اس پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اس نے باغیوں کا ساتھ دیا ہے یا پھر دونوں طرف کو استعمال کر کے کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن غداری ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا وہ اقرار کر چکا ہے، اسی لیے اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ گلامز اور کوڈور بھی بہترین درجہ تو ابھی باقی ہے۔ تم لوگوں کو زحمت ہوئی، بہت بہت شکریہ۔
क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हारे बच्चे बादशाह बने, कि जिन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया उन्होंने तुमसे इससे कम का वादा नहीं किया था? है इस तरह से तुम बादशाह भी बन सकते हो, जो कि नामुमकिन बात है। बदी के कारीगर हमें सच बताते मानता हूं, तबाही के गहरे में धकेलने के लिए हमें ईमान अफरोज ख्यालों से भाग कर तारीख राहों में छोड़ देते हैं, क्या हमेशा संगीन होता है। मैं भाई का बात सुनना। दो सच बताए गए हैं जो कि आने वाले शाही खेल का पर्दा उठाते हैं। ये गैर हकीकी बातें बुरी नहीं हो सकती और ना ही अच्छी। अगर अच्छी हैं तो मुझे ऐसी कामयाबी का वादा क्यों किया जो कि सच है? मैं फरमा रवाए कॉर्डोर हूं। और अगर बुरी हैं, मैं ऐसी सोच में क्यों मुब्तला हूं जिसके तसव्वुर से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मेरी फितरत के खिलाफ है। जो तसव्वुरात इंतहाई हौलनाक हैं, क्योंकि ख्याल है इसका कत्ल करने का सोच कर इस हद तक कांप जाती है कि मेरा दिमाग मालूम हुआ जाता है। जो दिखता है वो है नहीं। देखो मेरे दोस्त को कैसा गुम है। अगर किस्मत मेरे सर पर ताज रखना चाहती है तो वही मेरे सर पर ताज रखेगी, मेरे अमल दखल के बगैर। मेरे दर्जे इस पर ऐसे हावी हुए हैं कि ये अभी तक संभल ही नहीं पाया। अजीज मैकबेथ गुम हो। अजीज मैकबेथ, हम आपके इंतजार में खड़े हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं अपने ख्यालात में खो गया। चले बैंको, आज जो हुआ उस पर गौर करना। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। चलो। बेशक। वो मुझसे फतेह के दिन मिले और मुझे एहसास हुआ कि उनकी मालूमात एक आम इंसान से ज्यादा है। मैं चाह रहा था कि मैं उनसे और दरियाफ्त करूं तो वो फिजा में गायब हो। मैं हैरत ज़दा वहां खड़ा था कि बादशाह की तरफ से दो कासिद आए। उन्होंने मुझे फरमा रवाए कॉर्डोर के लक़ब से खिताब किया। ये वही लक़ब था जिससे उन 3 चुड़ैलों ने मेरा इस्तकबाल किया था, मैकबेथ आने वाला बादशाह कहने से पहले। मैंने सोचा इस बात का तुम्हें इल्म होना चाहिए मेरी शरीक अज़मत, कि तुम्हें भी मालूम हो कि आने वाले वक्तों में हमें किस अज़मत का वादा किया गया है। गुलाम्स आप हैं, कॉर्डोर भी, और वो भी होंगे जिसका वादा किया गया है। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी इंसानियत भरी हुई है फितरत में, फूट फूट के तुम अजीम बन सकते हो, तुम जा तलब भी हो, लेकिन तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा है नहीं। नाजायज और गलत नताइज नेकी के जरिए हासिल करना चाहते हो। जल्दी घर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें माइल करूं कि तुम उस अजमत को हासिल करो जिसका हमें वादा किया गया है। क्या हुआ? बादशाह सलामत आज यहाँ पहुंचा। क्या बकते हो? क्या तुम्हारे आका उनके साथ नहीं? अगर ऐसा होता तो मुझे पहले से बता देते। आप बिल्कुल ठीक फरमाती हैं, वो जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं। मेरा एक साथी जो उनके आने से पहले पहुंचने की जल्दी में हाफता कांपता आया, सिर्फ इतनी ही इतला दे सका। जाओ उनकी खिदमत करो, हमारी बड़ी अच्छी खबर लाए हैं। जो चीजें है वो आदमी जिसे मालूम होता है आपके हुक्म से किसी खास काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा ही है। मोहतरम बुजुर्गों, रुपए शहर और अजीज हाकिम। मोहतरम बुजुर्गों, रुपए शहर और अजीज हाकिम, ये सच है कि मैंने इनकी बेटी को अपनाया और उससे शादी की, तो मेरा जुर्म भी सिर्फ यही है, इससे ज्यादा नहीं। मैं लफ्जों की बुनत से आ रही लहजे में थोड़ा तल्ख। जब मैं 7 साल का था तब से 9 माह कबल में जंगों में जुटा हुआ। जंग के अलावा मुझे इस दुनिया की कोई और मालूमात नहीं, लिहाजा मुझे अफसोस है कि मैं अपनी दिफा में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने इश्क की सारी दास्तान बयान करूं कि कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा टोटका या फिर कौन सा पुरअसरार जादू का इस्तेमाल करके, जिसका उस पर इल्जाम है, मैंने इनकी बेटी का दिल जीता है। इंसानी ख्यालात पर हावी होने वाली रूह। आओ
मुझे इतना सफाक कर दो कि नदामत मेरे मकसद में हायल ना हो। ऐ जहन्नम की काली रात इस तरह छा जाओ कि मेरा तेजदार खंजर अपना जख्म ना देख सके, कोई अर्श से ना देख सके, ना कह सके कि रुक जाओ। इतनी मासूम, फर्माबरदार, भोली भाली लड़की किसी ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती है जिसको वो देखने में भी खौफ खाती है? ऐसी बात सोचना भी मौत जहालत है। मैं आपसे कह रहा हूं ड्यूक, मैं कह रहा हूं कि इसने उस पे कोई जादू टोना किया है। आपके कह देने से यह बात साबित नहीं हो जाती। बगैर किसी सबूत के आपने जो इल्जाम लगाए हैं उन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। हेलो, तुम बताओ हुआ क्या? ये मुझे चाहते थे, मुझे अक्सर अपने आप बुलाते थे, बार बार मेरी जिंदगी के वाकयात के बारे में पूछा करते थे। मैंने सब बताया, अपने लड़कपन से लेकर सारा साल ठीक उस वक्त तक जब मैं इनसे खड़ा बातें कर रहा था। मैंने वो सारे दुख भरी दास्तानें सुनाई, दिल दहला देने वाले कारनामे, कि कैसे मैं मौत के मुंह से बाल बाल जिंदा निकल आया, कैसे मुझे जंग में यरगमाल बनाया गया, कैसे मुझे गुलामी में बेचा गया और फिर कैसे मैंने आजादी पाई। क्या जहालत है। मैंने अपनी जिंदगी के इन 28 सालों में एक शख्स ऐसा नहीं देखा जो ये जानता हो कि आपके लिए बेहतर क्या है। अरे हम पर मुनसर है कि हम क्या हों और क्या नहीं। हमारा जिस्म एक बाग की तरह है और हमारे इरादे एक बागबान। ये हम पर मुनसर है कि हम उसमें क्या उगाएं, कि ये एक बंजर जमीन रहे या एक हरा भरा बाग हो जिसमें कई इक़साम के फूल हैं। ये हम पर मुनसर है कि हम उसमें क्या उगाएं। हाँ, अगर हम अक्ल से पैदल हो और हमें अपनी हवस पर काबू ना हो तो लेकिन शुक्र है कि हमारे पास अक्ल है जो हमारी हवस की आग को ठंडा रखती है। सिमोना मेरी बातें बहुत गौर से सुना करती। मैंने देखा कि अगर वो घर के किसी काम में मसरूफ होती थी तो उसे फौरन मुकम्मल करके मेरे पास आती थी कि मैं अपनी कहानी पूरी करूं। लड़कपन पे जो मुझ पर जुल्म हुए उन्हें सुन के उसकी आंखें भर आती थी। वो आ भर के कहती थी कि काश उसने ये सब कुछ नहीं सुना होता, मगर फिर कहती थी कि उसे ख्वाहिश है कि खुदा उसके लिए भी एक ऐसा ही शख्स भेज दे। अजीम ग्लाम्स, लायक कॉर्डोर, आने वाले वक्तों में इससे भी कहीं ज्यादा। तुम्हारे खत ने मुझे इस वक्त से बहुत आगे पहुंचा दिया और अब मैं मुस्तकबिल को अपने सामने देख सकती हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करो और मुझसे इल्तिजा की कि अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त जो उससे मोहब्बत करता है तो मैं उसे भी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना सिखा दूं कि वो इससे इसका दिल जीते। ये इशारा मेरे लिए काफी था कि मैं उससे अपने दिल की बात करूं। उसे मुझसे मोहब्बत थी कि मैंने जिंदगी में कई खतरे झेले और मुझे उसे मुझसे हमदर्दी थी। तुम जिसे मोहब्बत कहते हो मेरे तय ये हवस की एक शक्ल है। तुम्हें मोहब्बत है क्योंकि तुम्हें हवस है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर काबू नहीं है। बस यही वो जादू है जो मैंने कहा। तशरीफ ला रही है, वो इसकी गवाही खुद देगी। जान आज की रात लड़के यहाँ पे आ रहा है। और जाएंगे कब? कल वो कल कभी नहीं आएगी। मर्द बन मर्द। ऐसी बातें तो मेरी बेटी का भी दिल जीत सकती है। हुजूर, मेरी आपसे दरखास्त है कि आपने सिमोना की बात भी सुन ली। इधर आओ, कहो इन्हें बताओ कि तुम किसकी ज्यादा फरमाबरदार हो। वालिद मोहतरम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फर्मा बरदारी का फर्ज बटा हुआ है। मेरी जिंदगी और तरबियत का तकाजा है कि मैं आपका एहतराम करूं। मैं आपकी फर्मा बरदार हूं, महज आपकी बेटी होने की हद पर, लेकिन ये मेरे शौहर हैं। डेस्डेमोना उस हबशी के प्यार में ज्यादा देर तक पड़ी नहीं रह सकती। इन हबशियों के मिजाज में ज्यादा ठहराव नहीं होता। वो जो आज उसे शीरी मालूम होती है कल उसे कड़वी लगेगी। डेस्डेमोना ओ फहलो को एक जवान मर्द के लिए छोड़ देगी। जब उसका जिस्म उसके जी से भर जाएगा तब उसे अपने गलत फैसले का एहसास होगा। मेरा अज़्म एक वैश्य गुमराह दरिंदे और एक जिनसी लज्जत से महरूम लड़की के बोसीदा बातों और उसके मजहब पर भारी पड़ेगा। तुम जल्द ही उसके मजे लूटोगे। मेरे आका, आपका चेहरा एक खुली किताब है जो कोई भी बासानी पढ़ सकता है।
वक्त को धोखा देने के लिए वक्त की तरह दिखो, फूलों की मासूमियत के लबादे में छुपे हुए सांप बनो। और मेरी आपसे अर्ज है कि जिस तरह मेरी माँ ने आपके साथ मोहब्बत की, और आप मुझे भी इजाजत दें कि मैं अपने आका की उतनी ही इनायत कर सकूं। ये मजीद बात करेंगे। आप सिर्फ अपने चेहरे पर बेफिक्री ले आइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। खुदा तुम्हारे साथ रहे, मेरे लिए अब बस हुआ। ऐसी औलाद होने से बेहतर होता कि मैंने एक बच्चा गोद ले लिया होता। जरा हफ्शी, मुझे उस हफ्शी से नफरत है। यह तो आम है कि वो मेरी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर चुका है। ये सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इस बात का शक ही काफी है। तहे दिल से इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, ये पहले ही से तुम्हारी थी, लेकिन अगर मेरा बस करता तो मैं तहे दिल से इसे तुमसे दूर रखता। वो मेरी बहुत इज्जत करता है। ये मेरे बहुत काम आएगा। अब देखना यह है कि मैं कैसे को इस्तेमाल करके उसका ओहदा हथियाऊं और उसे इस्तेमाल करके उथैलो को ठेस पहुंचाऊं। कैसे? एक तीर से दो शिकार। कैसे को उथैलो को भड़काता हूं, उसे बताता हूं कि डेस्डेमोना और कैसियो कुछ ज्यादा ही करीब है। अब सीधा साधा इंसान समझता है कि जो इंसान दिखता है वैसा ही होता है। बड़ी आसानी से मैं उसकी नाक पकड़कर हर तरफ घुमा सकता हूँ। बस तो तय हुआ, शैतान की जरा सी मदद से मैं इस खौफनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं बार बार कहूंगा कि मुझे उस हफ्शी से नफरत है। ये नफरत मेरी जिंदगी का मकसद बन गई है। मैंने आज रात एक ही जाम किया है और देखो कितनी तब्दीली आ गई है। मुझमें ये कमजोरी है कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक और जाम उठाऊं। लेफ्टिनेंट, मगर आज तो जश्न की रात है। अगर किसी तरीके से मैं इसे एक जाम पिला दूं, उस पे ये जो पहले से ही पिया बैठा है तो जरा से भिनक पड़ने पर एक पागल कुत्ते को काटने को दौड़ेगा। अगर जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा हो जाए तो कामयाबी यकीनी है। जाओ लेफ्टिनेंट के पीछे जाओ। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मोहतरम जनरल ने एक ऐसे आदमी को इतना बड़ा ओहदा दे दिया जिसे अपने आपे पे काबू नहीं। ये करके उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। मैं तो हरगिज़ नहीं करूंगा। इस हसीन जजीरे के एवज में मैं कैसे भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे अच्छे लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा, मार मार के तेरा मुर्दा निकालूंगा और मेरे से बोलता भी है। मेरे अच्छे लेफ्टिनेंट, मेरी बात मानिए, हाथ ना उठाएं। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा सर भी तोड़ दूंगा। आराम से आपको चढ़ गई। चढ़ गई है मुझे। जाओ, साथ हो रहा है। जाओ, बता दो अरे लेफ्टिनेंट, पहरेदार आ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? सारी जिंदगी इतना गहरा जख्म, आज ये मरा। आप लोगों का जनरल साहब, तुम बात कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हम तुर्कियों की तरह जंगली हो गए हैं? को अगर आप किसी ने तैश में आके भी तलवार उठाई तो उसे याद रखना चाहिए कि उसका वार पूरा होने से पहले वो यहाँ मोटा पड़ा होगा। तो मसला क्या है हज़रात? जागो, तुम बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम हुजूर। अभी थोड़ी देर पहले तो हम खुश थे, तफरीह में मसरूफ थे, जैसे कि दूल्हा दुल्हन सुहागरात की रात के वक्त होते हैं।
कि फिर अचानक जैसे किसी मनुष्य शिकारी की वजह से इनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, तलवारें निकल आई एक दूसरे पर। इस अहमकाना हरकत की इब्तिदा कैसे हुई हुजूर, मैं नहीं जानता। माइकल, तुम बताओ कि तुम्हें खुद पे काबू कैसे नहीं रहा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं इल्तिजा करता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। मोहनदानो, तुम तो ठंडे मिजाज के मालिक हो, तुम बताओ कि क्या हुआ? अकेले मैं बुरी तरह जख्मी हूँ। तुम्हारा अफसर यहाँ को बताएगा कि क्या हुआ। मेरा खून खौल रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं सबको सजा दूंगा। अगर मेरे किसी सगे भाई ने भी ये किया होता तो मैं उसे भी सजा देता। तुम लोग इस शहर में जो अभी जंग से बचा है, रात की पहरेदारी करने के बजाय आप झगड़ों में जुटे हो। लान हो तुम लोगों पे। जागो, क्या हुआ है? मैं जानता हूँ ये तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन तुमने सच